Good morning all of you. Welcome to the English class. Today I am going to read chapter number 5, that is the enlightened butcher. The enlightened means the person who have got the knowledge of understanding something, and butcher, of course everybody knows, the person who sells meat. So let's read the chapter now. Kaushika was the only son of his parents. Kaushika अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे. He was the only son. Mother, he said one day, I want to go off into the jungle and devote myself to spiritual studies. His mother replied with concern, but my son, your father and I are very old. If you go away, what will happen to us? Who will attend to our needs? Kaushika जो थे, he was very much interested in God. He wanted to devote his whole life, अपने पूरे जीवन को वो God को devote कर देना चाहते थे. He wanted to do spiritual studies, so he wanted to leave the house. लेकिन उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे. उसकी माँ बहुत ही चिंतित थी. His mother replied with concern. She was very much worried. She asked her son, we are getting old. If you leave the house like this, then what will happen to us? Who is going to take care of us? And who is going to fulfill our needs? But what happens? Kaushika did not listen. Kaushika उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनते हैं. And he determined to study the Vedas. He had already decided, now he is going to study the Vedas and nothing can stop him. His mother cried in vain. All the crying of his mother gone vain. It was useless. Why? Because Kaushika did not listen and he left the home and leaves for jungle. Eventually Kaushika acquired great mystical powers, and there in jungle finally he is successful in getting all these magical powers. उनको ये magical जो शक्तियाँ होती हैं वो हासिल वो कर लेते हैं. And one afternoon he was meditating under a tree. A crane flew up and perched herself on a branch above Kaushika. और एक दोपहर में where the Kaushika was meditating, जिस पेड़ के नीचे कौशिका बैठ करके ध्यान में थे, उसी पेड़ के ऊपर suddenly a crane flew up and sat on that branch where the Kaushika was sitting. And some bird dropping fell on Kaushika's head. और उस bird की कुछ जो droppings थी वो कौशिका के सिर पर आ गिरती हैं. Kaushika furiously threw a fiery gaze at the crane. और कौशिका बहुत ही गुस्से से उस crane की तरफ देखते हैं. The crane immediately fell dead, and immediately क्या होता है? The crane was fell dead. Crane उसी समय मर जाता है. The sage felt sorry for what he had done. Now, the sage was feeling very sorry whatever he had done. He was asking himself, how could I have allowed my anger to overcome me? मैंने अपने गुस्से को अपने ऊपर कैसे हावी होने दिया? He was in a very bad condition. He was very sad now. Later in that day, he went to a village to beg for alms. और दोपहर में उसी दिन वो एक गांव जाते हैं where he was asking for alms. भिक्षा लेते हैं वो हर जगह, हर घर से. The lady of the house asked him to wait and went to get some food. और जिस घर से वो भिक्षा ले रहे होते हैं, there was a lady. She asked him to stay outside, wait for some time, and she went inside to get some food for sage. वो उनको दरवाजे पे खड़ा रखती हैं और अंदर जाती हैं उनके लिए भिक्षा लेने के लिए. Right then her husband arrived. और उसी समय उस लेडी का हस्बैंड घर आ जाता है. She immediately set aside the pot of food she was taking the sage and went to attend to her husband. और तभी
जो पॉट उसके हाथ में होता है भोजन से भरा हुआ, दैट शी वॉज टेकिंग फॉर द सेज, जो वो सेज के लिए लेके जा रही थी, उसको एक साइड रखती हैं और पहले जाकर के अपने हस्बैंड को अटेंड करती हैं. आफ्टर वॉशिंग हिज फीट, गिविंग हिम फूड एंड अटेंडिंग टू हिज नीड्स, शी केम बैक आउट टू गिव द आर्म्स टू द सेज. और पहले अपने हस्बैंड को उनके हाथ पैर धुलाकर, उनके वॉश कराकर फीट्स को, और उनको खाना दे करके, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग अटेंडिंग हिज नीड्स, शी कम्स बैक अगेन टू द सेज टू गिव हिम द आर्म्स. अब उनको उनकी भिक्षा देने के लिए वो वापस सेज के पास आती हैं. बट द सेज वॉज वेरी इंसल्टेड. द सेज हु वॉज वेटिंग आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, नाउ ही वॉज फीलिंग वेरी वेरी ह्यूमिलिएटिंग. अब उनको ये बड़ा ही अपमान लगा कि एक लेडी ने, उस लेडी ने जो कि उसको छोड़ करके, जो ब्राह्मण काफ़ी देर से भिक्षा के लिए बाहर वेट कर रहा था, उसे छोड़ करके उसने पहले अपने हस्बैंड की सेवा की, उनकी देख रेख की, उनको खाना दिया, और उसके बाद में वो वापस उसको भिक्षा देने आई. तो ये चीज़ ब्राह्मण को बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग लगी. यू पुट योर हस्बैंड बिफोर अ पायस सेज. तुमने एक पवित्र साधु से बढ़कर अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी दी. डू यू नो द पावर ऑफ अ ब्राह्मण. क्या तुम्हें ब्राह्मण के पावर की बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है. शी कामली रिप्लाइड. लेकिन लेडी बहुत ही शांत थी. उसने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया, यस, अ ट्रू ब्राह्मण इज ही हु हैज़ मास्टर्ड हिज एंगर. उसने कहा, एक सच्चा ब्राह्मण वही है जिसने अपने क्रोध पर विजय पा लिया हो. प्लीज़ डू नॉट थ्रेटन मी. आई एम नॉट अ क्रेन दैट विल डाई बाय योर फियरी गेज. प्लीज़ आप मुझे धमकाइए मत. मैं कोई क्रेन नहीं हूँ जो आपके इस घूरने से मर जाएगा. द सेज वॉज अमेज्ड. हाउ डज शी नो अबाउट द क्रेन? ही वंडर्ड. अब क्रेन की, अब वो जो सेज था उसको समझ नहीं आ रहा था. ही वॉज वेरी मच सरप्राइज कि कैसे उसको इस क्रेन के इंसिडेंट के बारे में पता है. हाउ डज दैट लेडी नो अबाउट दैट इंसिडेंट ऑफ क्रेन? द लेडी कंटिन्यूड, ओ होली वन, you are a learned Brahman, but you have not understood the truth about virtue. लेकिन लेडी ने अपनी बात कंटिन्यू की. She kept saying, उसने कहा, ओ होली वन, आप तो एक पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, बट स्टिल यू हैव नॉट अंडरस्टूड द ट्रुथ. अभी भी आप ज्ञान को समझ नहीं पाए हैं, ज्ञान की अच्छाई को नहीं समझ पाए हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू बी इनलाइटेंड, अगर आप सच में ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो गो टू द धर्मव्याद हु लिव्स इन मथुरा. तो आप जाइए और धर्मव्याद से मिलिए जो कि मथुरा में रहता है. द सेज थैंक द लेडी एंड हरीड टू मथुरा. उस लेडी को थैंक करते हुए सेज मथुरा की तरफ चल दिए. ही मस्ट बी अ ग्रेट एंड लर्नेड सेज इंडीड, कौशिका थॉट टू हिमसेल्फ. और जाते जाते कौशिका के माइंड में एक ही बात थी कि ज़रूर ये जो धर्मव्याद है वो क्यों नहीं, वो हो सकता है बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा गुणी और ज्ञानी साधु है. उनके दिमाग में यही चल रहा था कि हो ना हो ये बहुत ही ज्ञानी है. बट when he finally reached Dharmvyad's place, he found it to be a butcher shop. A very ordinary looking man came out and said, "Welcome, Holy One. I am Dharmvyad, the man who you seek." लेकिन finally जब that sage reached to the Dharmvyad place, धर्मव्याद की जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पर वो धर्मव्याद को क्या पाते हैं? वो देखते हैं कि वहाँ पर तो एक ऑर्डिनरी सा बूचर का शॉप है और बहुत ही सीधा साधा एक आम सा दिखने वाला व्यक्ति बाहर आता है और सेज से कहता है, वेलकम होली वन, आई एम धर्मव्याद, द मैन यू सीक. मैं ही वो धर्मव्याद हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं. So that's all for today, children. We'll continue the chapter in our next week, in our next video. Till then, bye-bye.